Hi all. So this video is the first video जिसके बारे में मैंने एक इंट्रो वीडियो बनाई थी, the first video basically. तो this is the incident जो कि I would like to share. मतलब ये एक तरह से beginning था why I started with content writing. तो this is the whole story कि when I took up content writing, why I quit that content writing part, and Abhi at this point why I am into this IT domain. So I hope you will love hearing that video because of course it's a personal experience, and I again, like I told it before, I wanted everyone, like there might be people जो ऐसा कुछ फेस कर रहे होंगे और they might be thinking कि हाँ हम बहुत रिलेट कर पा रहे हैं कि हम भी ऐसे कुछ टाइम पे थे कि कुछ ऐसे, और मे बी आई कैन गेट benefited from it, or maybe others they might get benefited from it. So yeah, let's start with it. So अगर मैं, I'll just name this video as a how I began with content writing, or why, especially why I began with content writing. So story, it starts from I guess third or fourth year. It was then when I started writing. मतलब college में यार, there are many incidents which are you experience, right? कि तुम्हारे साथ बहुत कुछ हो रहा है, you come across many things which can't be disclosed, okay, but बहुत सारी चीज़ें होती है, राइट? एंड फॉर मी उस टाइम पे वन ऑफ द थिंग्स वाज राइटिंग अबाउट वॉट एवर आई वॉज फेसिंग देन, बिकॉज प्लेसमेंट टाइम चल रहा था. इट वॉज आई गेस थर्ड और फोर्थ ईयर ओनली, या फिर थर्ड मिड होगा, थर्ड ईयर का मिड होगा, या फिर फोर्थ ईयर की स्टार्टिंग. तो इट वाज उस टाइम पे जस्ट बिकॉज प्लेसमेंट्स चल रही थी और अच्छे एस डी पी ए वालों की प्लेसमेंट्स हो रही थी, एंड सम ऑफ देम वर रियली वेरी गुड जिनकी हो रही थी प्लेसमेंट्स. तो मी एंड माई रूमीज वर लाइक कि यार सबकी हो रही है, एंड यू आर लाइक ऑल स्टक कि क्या हो रहा है, कैसे होगा सब कुछ. तो एट दैट टाइम देयर वाज दिस कंपनी Deloitte. तो उसमें आई डोंट नो हाउ आई फिल दैट फॉर्म, बट उसमें मेरा नाम नहीं आया. आई डोंट नो, मतलब लास्ट मोमेंट पे माई नेम वॉज देयर इन द लिस्ट, बट जब ऐसा था कि आपको चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी जाना है फॉर द टेस्ट एंड ऑल, उस लिस्ट में माई नेम वॉज इन देयर बिकॉज इट वॉज द एंट्री लेवल पार्ट. उसमें भी मेरा नाम नहीं था. तो आई वॉज लाइक कि टोटली शैटर्ड कि यार लास्ट मोमेंट पे भी, लास्ट मोमेंट तक मेरा नाम लिस्ट में था, एंड अल्टीमेटली जब जाने की बारी आई उधर माई नेम वॉज नॉट देयर इन द लिस्ट. तो उस टाइम आई जस्ट थॉट ऑफ अ वे उस टाइम, बिकॉज आई वॉज रियली डेवस्टेटेड कि यार क्या कैसे हो गया. तो इट वॉज रियली बैड फेज. तो उस टाइम आई थॉट ऑफ अ वे कि यार ये सब कुछ चल रहा है, तो इट वॉज रियली हैवी ऑन मी, ठीक है. तो आई थॉट ऑफ राइटिंग सम ऑफ द थिंग्स लाइक वॉट एवर आई वॉज एक्सपीरियंसिंग और वॉट एवर things I have faced in college. So I thought of writing them down, and it were basically, I guess, 4 to 3 or 5 stories, or maybe chapters, if I say. So these were 4 or 5 chapters which I wrote about all of my roomies and my relationships and bonds that we had and what all we did, right? So it was all about that. तो content writing I started उस time से. तो उस time पे I was writing things down कि, and it was English, right? Both English and Hindi both were there. So I was actually getting a good response. So कि yes, you should try it sometime, because that content, most of them, I mean I get it कि most of them, like some are my friends and some are my classmates, so they might appreciate it, but I was getting response from some other people as well कि this is actually good, that you should try writing, you try hand in writing, right? तो उस टाइम I thought कि चलो ठीक है ट्राई करके देखते हैं. तो बीच में there was this time period, उस टाइम पे I did content writing for internship थी 3 months की. तो I did, तो पुणे बेस्ड कंपनी थी. तो आई वॉज गेटिंग अ स्टाइपेंड. इट वॉज डिसेंट अमाउंट, डिसेंट. तो मैंने कहा चलो ठीक है ट्राई कर लेते हैं कि अच्छा खासा है, ये हो रहा है कि पैसे भी आ रहे हैं तो अच्छा चलेगा सारा. तो लेटर इट वॉज आई वॉज दिस president of one of the clubs in my college. So there, and what I used to do, it was कि responsibilities I used to assign them, and then I asked my HOD that कि I got this internship कि can I like skip the classes for some time, because उस टाइम पे क्लासेस में इतना कुछ हो नहीं रहा था. तो आई थॉट कि ठीक है पूछ लेते, परमिशन लेके कर लेते तो क्या ही होगा. बट ही रिजेक्टेड इट कि ये कॉलेज से इंटर्नशिप है. आई सेड नो. तो he was like, I literally had that offer letter in hand ki, look, I got this internship. And then he was like, he just
simply said a no onto my face, right? And I was like, what the hell? Why the hell? How the hell can he say something like this? कि भाई internship तो है, मिली तो है. उनका simply it was the कि भाई कॉलेज से नहीं है तो ठीक है जाओ. तो it was really bad उस टाइम पे तो. But somehow engineers like we all are, I mean most of us are. तो I thought of a way कि ठीक है काम अगर मिल रहा है क्लब्स पे, ठीक है, if you are into a club तो I tell you कि get many events to organize, ठीक है. और उस टाइम पे बहुत कुछ तुम झोल कर सकते हो, राइट? लाइक some of you might be able to understand कि what I'm trying to say. तो उस टाइम पे I assigned some of the responsibilities जो बाकी लोग थे of the club. So, and I used to work from around 11 to 5, 11 to 5 or 6 it used to be. तो उस टाइम पे काम होता था. एंड हॉस्टल में we used to have 7:30 पे अटेंडेंस, तो उस टाइम पे जाना होता था. तो 3 months के लिए आई डिड दैट इंटर्नशिप एंड आई वाज लाइक गेटिंग अ डिसेंट पे. तो फिर उसके बाद घूमने घूमने जा रहे हैं तो ठीक है, सब सेटल्ड है. तो साइड बाय साइड आई वाज आल्सो राइटिंग दोज ब्लॉग्स, राइट? तो उसमें लाइक आई टोल्ड यू कि अच्छा रिस्पॉन्स आया था. तो उस टाइम से जो एक बिलीव था कि हाँ नॉन टेक में जाना, इट गॉट इवन मोर फर्मर कि भाई हाँ टेक्निकल छोड़ो, अब इसमें रिस्पॉन्स अच्छा आ रहा है तो फिर चलो भाई नॉन टेक में फोड़ते हैं कि कंटेंट राइटिंग करते हैं चलो. तो उस इंटेंशन से, उस होप से, उस माइंडसेट से जब अपनी इंजीनियरिंग ख़त्म हुई तो आई उस टाइम जॉइनिंग भी नहीं आई थी किसी कंपनी की, मतलब जिन कंपनीज में प्लेसमेंट हुई थी बाद में तो उनकी जॉइनिंग भी नहीं आई थी तब तक. तो इट वॉज 10th of April when I joined कंटेंट राइटिंग मोहाली में. तो दिस वॉज दिस मोहाली बेस्ड कंपनी होनी, राइट? तो फिर उधर मैंने ज्वाइन करा. एंड इट वॉज लाइक टोटली, मतलब ठीक है, कॉलेज से एकदम बंदा आया है एंड देन यू आर गेटिंग दिस इंडस्ट्री एक्सपोजर एकदम से. तो इट वॉज एक्चुअली स्टार्टअप जो जिसमें मैंने कंटेंट राइटिंग की जॉब करी करी. तो इनिशियली इट वॉज इंटर्नशिप. उसके बाद विद आफ्टर 1 month आई गॉट फुल टाइम फॉर दैट. तो उधर फॉर मुझसे एचआर ने पूछा कि महिमा हाउ मेनी वर्ड्स वुड यू बी एबल टू डिलीवर आफ्टर 1 month. तो आई वाज लाइक what are your expectations? And she was like 2000 to 3500 or maybe 4000. So I was like this would be a bit like आफ्टर कमिंग फ्रॉम कॉलेज इट इज़ वेरी एकदम से बहुत ज़्यादा हो जाएगा काम, राइट? तो फिर मैंने कहा इतना ज़्यादा नहीं होगा तो इफ़ इट कुड बी रिड्यूस्ड टू, इफ मतलब ऐसा नेगोशिएट कर लो कि ना तुम्हारे लिए मतलब ऐसा होता है ना कि तुम्हारे लिए भी इतना, मेरे लिए भी कि थोड़ा तुम कर लो थोड़ा मैं कर लेती हूँ. इट वॉज दैट काइंड ऑफ अ थिंग. तो उस टाइम करा तो स्टार्टिंग में ही इट आई गॉट ऐसा था उधर कि लाइक यू आर टोल्ड टू राइट ऑन द पीस दैट सपोज लाइफस्टाइल निश है, राइट? तो लाइफस्टाइल निश में आई टेल यू देर आर मेनी सब डोमेन्स, राइट? कि पेरेंटिंग होती है, हेल्थ केयर होता है, पेट केयर भी होता है एंड होम का भी होता है. सम ऑफ देम आर बिजनेस आर्टिकल्स एज वेल, अटॉर्नीज के होते हैं. तो देर आर मेनी मेनी थिंग्स. एंड ट्रैवल का भी हो जाता है, फैशन का भी हो जाता है. तो देर आर मेनी थिंग्स विच ऑल कम अंडर लाइफ स्टाइल निश. तो देर आई वॉज राइटिंग ऑल सच आर्टिकल्स. तो उसमें देर वॉज सम मिस्टेक्स विच आई वॉज getting, and my mentors were telling me that these are some of the things which you are doing wrong. तो आई ट्राइड टू इम्प्लीमेंट दोज मेजर्स कि नेक्स्ट टाइम से ऐसा कुछ ना हो. तो आई ट्राइड टू इम्प्लीमेंट सम ऑफ द मेजर्स टू अवॉइड दोज मिस्टेक्स. तो एंड वी वर यूजिंग चैट जीपीटी एज वेल. तो बट देर वॉज अ टाइम कि यार ऐसा हो जाता है, राइटर्स ब्लॉक आ जाता है कि मतलब कुछ सोच ही नहीं पा रहे हो आप, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है क्या करना है. बिकॉज वॉट आई फेल्ट ओवर देर वॉज कि एक आपको फॉर्मेट प्रोवाइड करा दिया गया है कि आपको, बिकॉज बीइंग अ राइटर, I mean, if I say about the mindset of the writer, it is कि you need to have that hook. Starting से ही कुछ ऐसा होना चाहिए that gathers the attention of the reader, right? तो अगर वो starting में ही कुछ ऐसा नहीं मिलेगा तो why would the person even bother to read that piece, right? तो there it was कि starting में before writing any article you need to have that hook, right? कि and people around me they had that experience. कुछ लोग journalism से आ रहे थे, कुछ लोग ने मास्टर्स करी हुई थी इंग्लिश से. तो देयर वर ऑल सॉर्ट्स ऑफ पीपल हु वर वेरी वेल वर्स्ड विद द टेक्निक्स एंड एवरीथिंग. तो देयर आई टुक हेल्प फ्रॉम पीपल एंड इट वॉज गोइंग वेल फॉर सम टाइम. बट लेटर इट वॉज कि होता है ना कि यार पॉलिटिक्स तो यू नो इट, राइट? कि बहुत अलग ही है. तो देयर वॉज दिस
one instance which I would like to tell you, it was कि उस time I guess there was this trip which I was going for. I mean, there was this trip which I had to go for. तो उस time I wrote some of the articles which as per them were really tremendously written, right? Because but for me it was कि जैसे मैं बाकी articles लिख रही थी, it was the same way that I wrote those articles. It were I guess 3 to 4 articles that I wrote during that period. तो they said that they were really very good. मैंने कहा ओके ठीक है, अच्छी बात है अगर ऐसा लगा। तो फिर उसके बाद जब आना हुआ बाद में, तो इट वॉज कि आप ऐसे नहीं कर रहे हो, वैसे नहीं कर रहे हो, ये है, ये इशू आ रहा है, वो इशू आ रहा है। एंड देन इट वॉज कि बाद में वन ऑफ द one of the person in the team was reviewing my article. तो उस time it was the break time, ठीक है? तो there were these 2 people उस time. तो one of them was reviewing my article and she said to her friend, I mean there's 2 लोग थे। ऑफ कोर्स हमारी जो पूरी टीम थी, इट वाज ऑल गर्ल्स टीम, ठीक है, कंटेंट राइटिंग की। तो ये 2 लड़कियां थी, तो ये दोनों बहुत अच्छी खासी दोस्त थी, ठीक है। तो ये दोनों का वन ऑफ देम जो थी वो काफ़ी टाइम से थी, मतलब 3-4 साल उसको कंपनी में हो गए थे। और जो दूसरे वाली थी, शी वॉज इन दिस कंपनी फॉर आई गेस 1 ईयर अराउंड, 1 और 1.5 ईयर्स कुछ टाइम से थी। तो ये दोनों बहुत ही अच्छे खासे दोस्त लोग थे। तो इट वॉज द सेम कि शी वॉज आस्किंग कि यार मुझे इस आर्टिकल में ना ये चीज़ थोड़ी अटपटी सी लग रही है, थोड़ी अजीब लग रही है, कि दूसरी वाली से पूछ रही थी जिसको जो ज़्यादा टाइम से थी उस कंपनी में। तो शी आज के मतलब मुझे तो वैसे ठीक लग रही है, मतलब बाकी देख लो कि इसका ऐसा मतलब जा रहा है, ये है वो। तो जो ज़्यादा एक्सपीरियंस वाली थी, शी आज किसका आर्टिकल है। तो दैट जो बंदी मेरा आर्टिकल रिव्यू करी थी, शी वॉज लाइक महिमा का आर्टिकल है। तो शी वॉज लाइक कि ठीक है बोल दो फिर वापस से करने के लिए, कोई बात नहीं। एंड I was literally sitting there. I had earpods on, and thankfully, I was trying to change the song or whatever it was, and I just heard that conversation. मैंने कहा this is going on about me, and what she said, ठीक है यार, अगर फ्रेशर भी हो इट डजेंट मैटर, राइट? कि अगर मिस्टेक है तो बताओ ना उस चीज़ को। ये क्या होता है, पूरा रिव्यू करने के बाद तुम पूरा का पूरा आर्टिकल लिखो, इट्स नॉट डन, राइट? कि अगर फ्रेशर है, कि ऐसा थोड़ी होता है कि अगर उसका है तो फिर हाँ ठीक है दे दो, बता दो मिस्टेक, कोई बात नहीं। आई डोंट थिंक दैट इट वाज राइट ऑन देयर पार्ट टू डू दिस थिंग। बट ठीक है, चलो ये वाला भी ठीक है। बट देयर इज वन मोर थिंग, लाइक ये लोग, मी कमिंग फ्रॉम कॉलेज, अभी पूरा मतलब कॉन्वोकेशन भी नहीं हुई है, इट इज जस्ट अप्रैल 2023। उस टाइम पे आई व्हेन आई जॉइन, मतलब कुछ टाइम बाद, इट वाज आई गेस मई और जून उस टाइम पे। तो उस टाइम पे देयर वाज दिस अगेन नेक्स्ट इंसिडेंट। मैंने उस टाइम तो चलो ठीक है कि कोई बात नहीं, सीनियर्स है, चलो चलो इतना नहीं सोचते, इतना जाने दो, काम करना है अभी, सीखने की सीखने का टाइम है और इन्हीं से सीखना है। तो उस टाइम पे फिर देयर वाज अनदर इंसिडेंट दैट टुक प्लेस। तो उधर क्या था, I came in the morning and I was sitting on a chair, sitting on one particular chair. तो it was in front of my desk. तो I thought कि उस टाइम chairs का यार, you know कि chairs ढूंढने की बच्चों की तरह कौन लड़ता है कि ये मेरी chair है, मेरी chair है। But one of the person over there, like the person who told कि महिमा का है तो ठीक है कोई बात नहीं दे दो, that person, that girl, she was like कि ये मेरी चेयर है, मेरी चेयर। मैंने कहा चेयर ही तो है, कोई बात नहीं आप दूसरी ले लो। तो शी वाज लाइक कि नहीं ये मेरी चेयर है, मैं मुझे बैठना है, कि मुझे इस पर ये है वो है। शी वाज लाइक टोटली आउट ऑफ हर माइंड कि यार मतलब इतना भी क्या हो गया, चेयर ही तो है, इतना क्या वो आग वो कर रहे हो तुम, मतलब। तो आई वाज लाइक ओके यू टेक इट, कि ठीक है कोई बात नहीं छोड़ो। मतलब इतना इमेच्योरली एक्ट करना फॉर जस्ट अ चेयर। पार्टी भी नहीं है भाई, कोई इलेक्शन भी नहीं आया, एंड स्टिल यू आर लाइक मेरी चेयर, एंड यू आर वे मोर mature than me, and still I, and at being at that position I don't expect, or even if a fresher is joining you, right, that person won't expect such a behavior from you अगर तुम ऐसा ऐसे कर रहे हो। तो so after some time it was like totally kind of hectic कि, और बहुत इट वॉज लाइक अफेक्टिंग मी डीप डाउन कि यार ठीक है काम भी कुछ ढंग से बता नहीं रहे हैं, अगर बता भी रहे हैं तो उसको उस ढंग से नहीं बताया, दैट इज़ नॉट अ प्रॉपर फॉर्मेट दैट इज़ बीइंग फॉलोड। और अगर यू आर सेइंग टू यूज चैट जीपीटी, तो
we are using ChatGPT, and it's not our fault that it's showing 100% AI written content, even if we are writing that content, right? So if you are asking us to go through ChatGPT, अगर उसका कुछ content आ रहा है, there are a few words which it's taking as AI written, and but those words are written by us, तो उसमें हमारी क्या गलती है? And still you are saying कि you need to modify it. And there was this one more instance I would like to say. This पूरी कहानी है, whole this whole all these incidents made me quit content writing, and I now think कि यार वो वाली चीज़ तो नहीं करनी है अभी for some time. तो there was this another incident. तो I wrote there were this one article जिसमें कि पहले जिस बंदी ने रिव्यू करा था आर्टिकल, तो उस टाइम पे आई वॉज असाइन दीज 3 आर्टिकल्स, तो वो 3 आर्टिकल्स मैंने करे. फर्स्ट वॉज राइट, ठीक है. तो उस टाइम देर वॉज सम इवेंट और एनुअल फंक्शन समथिंग इन द ऑफिस जो होने वाला था शाम को. तो ऑल ऑफ देम वर टोल्ड कि भाई आप मतलब मेरे जो आर्टिकल्स है, बिकॉज आई वॉज द मोस्ट जूनियर एंड आई वॉज मोस्ट जूनियर या जूनियर ही थी सबसे उधर. तो दे ऑल वर आस्क्ड कि मेरे जो भी आर्टिकल्स है, दे ऑल द टीम मेंबर्स नीड टू रिव्यू, मतलब 2 or 3 of them were given the responsibility to do that. तो उस टाइम एक वी हैड अ कंटेंट राइटर, शी वॉज अ टेक्निकल कंटेंट राइटर, उनको काफ़ी टाइम से एक्सपीरियंस था, एंड शी एक्चुअली केम फ्रॉम इंजीनियरिंग बैकग्राउंड ओनली. तो दे वर आस्क्ड टू रिव्यू माई आर्टिकल्स. तो आई रोट द सारे के सारे जो भी आर्टिकल्स थे आई रोट, उसके बाद वो वर रिव्यूइंग दोज आर्टिकल्स. तो उन्होंने पूरा बताया कि भाई ये मुझे मतलब इसमें थोड़ा सा मुझे मॉडिफिकेशन चाहिए, ऐसा ऐसा. तो इट वॉज ओके. तो जब उसके बाद मैंने मॉडिफिकेशंस कर दिए, तो एज पर हर आई डिड द मॉडिफिकेशन, जो भी उन्होंने रेक्टिफिकेशन बताया कि उसको ऐसे करना है, वो सब कुछ आई डिड. एंड लेटर व्हेन द गर्ल हु रिव्यूड इट प्रीवियसली फॉर मी, जिसको एक तो ज़्यादा एक्सपीरियंस वाली थी एंड एक जो दूसरे वाली थी, तो बोथ बेस्ट फ्रेंड्स जो थी, तो उनमें से एक जो थी who was in the company for 1.5 years. So she, when reviewed the articles, I don't had any problem with her. She is very good at her work, and she's really well, and she's positive every single time. I don't have any personal issues with that person, but it was the way of dealing, or what it was. I mean, that's not how it's done, right? एंड देन व्हाट हैपेंड, लाइक उन्होंने आर्टिकल रिव्यू करा, ठीक है. आर्टिकल रिव्यू करने के बाद उन्होंने कहा कि ये वाला पार्ट एंड दैट, वो जो पर्टिकुलर पोर्शन था, दैट पोर्शन वॉज आस्क्ड बाय द अदर टीममेट कि इसको रेक्टिफाई करो, एंड आई डिड इट एज पर हर कन्वीनियंस, राइट. एंड नाउ अगैन आई वॉज आस्क्ड जो उस चीज़ को मॉडिफाई करने को कि नहीं, ये चीज़ सही नहीं बैठ रही है, बहुत अटपटा, बहुत ऑफ लग रहा है, इस चीज़ को चेंज करो. तो आई वॉज एट दैट पॉइंट कि यार उन्होंने ऐसा कहा है, अब आप ऐसा कर रहे हो, जो मैंने पहले लिखा था वो भी ठीक था, बट तुमने उसको चेंज करा के अब तुम अपने अकॉर्डिंग लिखवा रहे हो, तो मेरा पॉइंट कहाँ रह गया? तुम राइटर को कह रहे हो कि तुम आर्टिकल लिखो, एंड देन यू आर इम्पोजिंग योर थॉट्स उस राइटर पर कि तुम इसको ऐसे नहीं ऐसे लिखो. देन व्हाट्स द होल पॉइंट ऑफ बीइंग द राइटर एंड राइटिंग द आर्टिकल्स डाउन? आई एम होप यू मस्ट बी गेटिंग इट राइट. कि अगर बंदा खुद के थॉट्स ही नहीं उसमें इम्पोज कर पा रहा है, या खुद के मतलब आइडियाज़ को जॉट डाउन नहीं कर पा रहा है, तो क्या ही पॉइंट है उस चीज़ का, राइट? तो पूरा पॉइंट ही खत्म है उस चीज़ का, तो राइटर होने का फ़ायदा क्या है उस चीज़ में? तो इट वॉज सच अ थिंग विच वॉज हैपनिंग. और तो और बहुत सारी ऐसी चीज़ें बार 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 जस्ट केप्ट ऑन रिपीटिंग. सो इट वॉज कि आई जस्ट टोल्ड देम कि इट इज़ रियली ऐसा ऐसा सब हो रहा है. आई जस्ट टोल्ड होल ऑफ द थिंग टू एच आर, एंड इन होप कि एच आर वुड डू समथिंग. बट वॉट शी डिड वॉज कि मुझे पूरी टीम से हटा के शी जस्ट आस्क्ड मी टू सिट बिसाइड हर डेली फॉर सम टाइम, कि भाई डेली क्या मतलब उनके साथ में ही बैठना है मुझे रोज़. तो वन ऑफ द मेंबर्स शी इवन टोल्ड मी कि आप बोलो उनको कि ऐसे पूरी टीम से मुझे अलग क्यों कर रहे हो. तो आई वॉज लाइक ठीक है, कि मैंने पूछा उनसे कि भाई ऐसे आप अलग क्यों कर रहे हो. तो शी वॉज लाइक कि स्पेस नहीं है, एंड ये मैंने कहा भाई और लोग बैठे हैं उधर, जगह है, दूसरी टीम के लोग उधर बैठे हैं, एंड यू आर स्टिल, यू जस्ट आस्क्ड मी टू सिट बिसाइड यू. व्हाई? सो वुड आई डू समथिंग रॉन्ग, और व्हाट एम आई डूइंग रॉन्ग? ठीक है. तो आई सेड कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं, अब जाना ही है तो ठीक है. जो उसके कुछ टाइम बाद आई जस्ट टोल्ड हर कि आई वोंट बी एबल टू डू इट, I won't be able to work here anymore. कि I want to resign. I want to give the resignation. So she was like, why you are doing this? So I just gave simply any reason, because I needed to walk out from there, right?
तो आई जस्ट टोल्ड हर कि आई हैव टू गो टू दिल्ली फॉर सम ऑफ द कोचिंग्स एंड ऑल एंड आई जस्ट कांट डू इट एनीमोर. तो शी सेड दैट we can't allow you to go ऐसे, तो you'll have to serve the notice period at least. तो भी आई वाज लाइक ठीक है चलो नोटिस पीरियड सर्व कर लेंगे. बट देयर वाज दिस पीपीटी ऑन विच अ पर्सन वाज वर्किंग. तो उस पीपीटी को देयर वर मेनी मॉडिफिकेशंस मेड. बार 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 दे वर जस्ट टेलिंग कि इसको ऐसे करना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है. आई हैड टू प्रिपेयर दिस होल प्रेजेंटेशन. आई हैड टू थिंक ऑफ एवरीथिंग जो भी उन्होंने बताया है. कभी वो कह रहे हैं कि उनको प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी चाहिए, एंड समटाइम्स दे वर सेइंग कि हमें कंटेंट बहुत अच्छे से चाहिए, एंड इट वाज कि बहुत अच्छे से रिसर्च करनी पड़ी थी, एंड देन वी हैड टू कंप्लीट दैट पीपीटी. तो वो इट टुक अराउंड अ वीक और समथिंग टू कंप्लीट दैट पीपीटी, एंड आई वाज लाइक राइटिंग this whole content. I was preparing this whole night, and I'll tell you one thing what happened. तो आई वॉज वर्किंग दिस होल नाइट राइट. तो इसके बाद आई स्लेप्ट एट अराउंड 5 और 6. तो मैंने उनको मेल किया कि आई वॉन्टेड टू मेल जस्ट द एच आर की भाई मैंने पूरी रात ऐसे काम किया, एंड आई इट वॉज ऑफ माई वर्किंग आवर्स राइट. तो उसके बाद भी आई वॉज वर्किंग, तो आई वॉन्ट बी एबल टू कम टू ऑफिस टुमारो. एंड आई डोंट नो हाउ इट जस्ट वेंट टू द होल ऑफिस. तो एचआर ने एचआर जस्ट कॉल मी इन द मॉर्निंग. तो शी सेड कि यू हैव टू कम टू ऑफिस, कि थोड़ा लेट आ जाना बट यू हैव टू कम टू ऑफिस. मैंने कहा ओके. तो उस टाइम तक आई थिंक उन्होंने नहीं ध्यान दिया था कि सबके पास मिल गया है जो भी है. लेटर उस टाइम पे जब मैं सुबह सुबह गई ऑफिस में, मतलब दोपहर को जब गई, तो एवरीवन वाज लाइक कि ये क्या किया है तुम, कि भाई दे वर लुकिंग एट मी विद सच कंफ्यूज्ड फेसेस कि भाई क्या किया तूने. मैंने कहा क्या हुआ ऐसा. तो दे वर लाइक कि तुमने क्या ईमेल करा है. मैंने कहा मैंने तो एचआर को मेल किया था. तो दे वर लाइक कि हम सभी को मेल आया, पूरे ऑफिस को गया. तो इट वॉज कि आई वॉज वर्किंग दिस होल नाइट कि तो आई वॉजंट एबल टू स्लीप. तो आई just needed a day off to rest. तो this mail was sent to the whole office. ठीक है. एंड आई वॉज लाइक कि यार ये क्या करा. एंड उस टाइम पे टीएल जो थे मेरे, दे ही जस्ट कॉल्ड मी कि यार कि पहले तो तुम मुझे ये बताओ तुमने ये सभी को क्यों भेजा. मैंने कहा मैंने सिर्फ उनको सेंड किया था, आई डोंट नो कैसे सबको सेंड हो गया. तो इट वॉज दिस होल सिनेरियो दैट हैपेंड. तो हाँ, कमिंग बैक टू द पॉइंट. तो जब पूरा ऐसे हो रहा था तो आई थॉट कि यार ये पीपीटी भी मुझसे बनवा रहे हैं, एंड दे वर सेइंग कि आपको ये टास्क भी करना है, ये आर्टिकल भी लिखना है ऑन प्रायोरिटी. तो मैंने पूछा कि यार मैं इस चीज़ को प्रायोरिटी पर रखूँ या इस टास्क को प्रायोरिटी पर रखूँ. जो आपके एक्सटर्नल क्लाइंट्स है उस चीज़ के लिए मैं पीपीटी बनाऊँ पहले, या फिर जो आपके आर्टिकल्स है वो लिखूँ. तो दे तो आई लिटरली जस्ट टोल्ड एचआर कि भाई ये दो चीज़ें आ रही है, अब मुझे बताओ कि मुझे किस पे काम करना है. कि मैं दोनों काम तो नहीं कर सकती हूँ, दोनों पाँव एक टाइम पे तो नहीं फंसा सकती हूँ ऐसी जगह पे. तो शी वाज लाइक कि ठीक है आप ये पीपीटी का काम करो. तो आई वाज डूइंग दिस. अपना काम खत्म करने के बाद आई लिटरली जस्ट लेफ्ट दैट जॉब. आई डिडंट वेंट देयर, आई एब्सकॉन्ड. आई वाज एब्सकॉन्ड, आई मीन जो भी है ठीक है. तो उस टाइम पे फिर मैंने नोटिस पीरियड भी नहीं सर्व करा, एंड आई जस्ट लेफ्ट द कंपनी. तो पीपल वर कॉलिंग मी दोज पीपल who reviewed my article, वो बेस्ट फ्रेंड्स, दे वर कॉलिंग मी. मैंने आई जस्ट डिडंट पिक अप देयर कॉल्स इवन कि भाई नहीं छोड़ो. अब छोड़ दिया तो छोड़ दिया. एंड आफ्टर इट वॉज आई गेस 13th of September, आई इवन रिमेंबर द डेट. तो इट वॉज 13th of September when I left the company, and I was like कि छोड़ो इधर नहीं जाना है अब, क्योंकि इतने सारे इंसिडेंट्स हो गए थे. तो आई जस्ट डिडंट फाइंड एनी पॉइंट कि इस चीज़ को कंटिन्यू करा. एंड एक प्रॉपर प्रोसेस होता है विच इज़ फॉलोड कि आप एक बंदे को, एक फ्रेशर को कैसे गाइड करते हो राइट. दैट वॉज नॉट हाउ इट्स डन. चाहे स्टार्टअप भी था, स्टार्टअप इवन फॉर दैट मैटर, अगर फ्रेशर भी है एटलीस्ट दे विल फॉलो कुछ ढंग का प्लान राइट, कि ऐसे ऐसे स्टेप्स में कुछ हो रहा है ठीक है. एंड दे वर लाइक दे जस्ट गेव द आर्टिकल्स फ्रंट अवे कि भाई तुम इस पर काम करो. this was what was being done there. So this was the reason I left that company, and I was like ठीक है content writing is not my job. Another thing which was the point is कि उधर I had to write articles, but I was more into story writing कि यार किसी चीज़ को ऐसे स्टोरी बनाओ, फैब्रिकेट करो, ऐसे पूरा लिखो. बट देयर इट वॉज कि यार तुम पेट केयर पे लिख रहे हो, और होम ऑटोमेशन, होम अप्लायंसेस, फैशन, ट्रैवल का तो स्टिल इट वॉज फाइन. बट ऐसे पेट केयर पे और होम रेनोवेशन के इतने सारे आर्टिकल्स थे.
होम रिफर्बिशिंग इतना सब कुछ था, तो आई वाज लाइक नो, ये वाली चीज़ तो नहीं है। तो आई लेफ्ट इट एंड देन आई थॉट कि ठीक है इसमें, क्योंकि मुझे बहुत लोगों से ये भी सुनने को आया था कि इसमें ग्रोथ नहीं है, कि ये तुम्हारे पर्सनल काम के लिए, कि एज अ हॉबी अच्छा है या फिर एज अ साइड हसल अच्छा है, बट इट इज़ नॉट गुड एज अ करियर इफ़ यू आर परस्यूइंग और थिंकिंग ऑफ परस्यूइंग इट। तो आई वाज लाइक कि ठीक है एटलीस्ट, चलो जो भी है एटलीस्ट कि ट्राई तो करा, बट आई डोंट हैव दैट रिग्रेट कि यार, कि ट्राई तो करा एटलीस्ट, इफ इट डिडंट वर्क आउट कोई बात नहीं, एटलीस्ट ट्राई किया। तो अभी उसके बाद तो आईटी वाला फेज स्टार्ट हो गया, जो कि मैंने हिंट आपको इंट्रो में दिया ही है। तो कि आईटी वाला फेज कैसे हुआ स्टार्ट, वो आई विल टेल यू इन नेक्स्ट वीडियो। तो आई होप इसमें मैंने काफ़ी चीज़ें रिपीट भी करी है बार बार, जो कि ठीक है, यू वुड अंडरस्टैंड राइट। तो दिस वॉज वॉट ऑल हैपेंड, माई अल्टीमेट शिफ्ट फ्रॉम नॉन आई टी टू आई टी, तो दिस वॉज इट। सो गाइज आई होप ये इंसिडेंट आपको मतलब रिलेटेबल लगा होगा, या फिर एटलीस्ट कुछ समझ में आया होगा जो भी मैंने बोला, ठीक है। तो या, तो आई गेस यू लाइक दिस वीडियो, एंड इफ यू लाइक द वीडियो सो जस्ट लाइक द वीडियो एंड कमेंट। ओके, सो थैंक यू ऑल। और हाँ, जैसा कि आई ऑलवेज से कि हैव अ नाइस डे, और जिनका कल ऑफिस है उनके लिए ऑल द बेस्ट, और जिनका दिन अच्छा, आई जस्ट होप सबका दिन अच्छा जाए, ठीक है। नो बैड डेज, ऑल द बेस्ट गाइज, बाय बाय, थैंक यू ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग।